Good afternoon, everyone. Hope you all are doing well. Okay, on behalf of DG Saksham family, I welcome you all on the webinar session on the topic Power of Relaxation, Strategies for Stress Management, which is very much required nowadays. With the motto Learning for Earning, SEAMS Groups initiate DG Saksham as a skill development wing. For more details, you can visit our website www.digisaksham.com or you can directly contact me, myself, Sakshi Narayan. Without wasting any time, now I hand over the session to Mr. Shami Chakraborty to give us some knowledge on stress management. Welcome everyone. My name is Shamik, as Sakshi has told, and I'm into stress management for the last almost 10 to 12 years now. And it will be lovely to share my experience with all of you, how to handle stress, especially in today's environment where because of lockdown and all those situations, whatever is happening right now around us, it too uh, brings stress in our lives, and how to handle stress is very important in today's world. So if I can open up the forum and ask all of you, and you can probably, if Sakshi, if you can just moderate, because I just want to start off with a question and let's see how people answer it. The question is, in a day-to-day life, how many times you experience stress in a day? I will ask the question in Hindi. पूरे दिन में आपको कितने बार ऐसा फील होता है कि आप स्ट्रेस में हो? So if some of you can answer, will be really great. तो 3-4 बार तो हो ही जाता है. 3-4 बार हो जाता है दिन में. Okay. Anybody else? Stress related to work? Any kind of stress. Personal stress, family stress, professional stress. Whenever you feel that I'm feeling stressful. How many times in a day? Some have written most of the time. Great. Let this be an interactive session. No, the more you interact, the more you'll be. How many of you think that yes, because of coronavirus, that is a universal stress, I guess everybody is feeling as of today. Right? So, my next question is, based upon the kind of feedback I'm getting, that दिन में एक दो बार तो stress feel हो ही जाता है. Once you feel stress, what is the next thing that you do with that thing? Do you simply accept your stress, or do you have some kind of a solution with you? अगर आपको स्ट्रेस फील होता है तो आप उसको किस तरीके से ओवरकम करते हो? Okay, no solution. Somebody has written. You think a lot about it, listen to music, you do Google, talk to parents, trying to figure it out. Great. Sometimes we have some kind of solutions. Okay. If our mind what we like the most. Good answer. That time to do other work, I think. अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि we need peace in our lives? I guess everybody. शांति सबको चाहिए. ऐसा कोई है जिसको अशांति चाहिए? सबको शांति चाहिए. Yes, sir. Right? Okay. So let's understand what peace is, right? And understand what stress is.
स्ट्रेस इज नथिंग बट जब आपके नेचुरल जो आपका सेल्फ है या जो नेचुरल पैटर्न है उससे थोड़ा सा डिविएशन आता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव एन हैबिट ऑफ गेटिंग अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, बट कल मैंने आपको बोला कि चलो सुबह 4 बजे उठते हैं एंड नेक्स्ट 10 days हमें सुबह 4 बजे ही उठना होगा. ये सुनते ही बहुत जनों के मन में ऐसा लगेगा कि भाई मुझसे ना हो पाएगा ये. करेक्ट और रॉन्ग? यस सर, ऐसा लगता है. राइट. अगर आपको बॉस कहता है कि आपको 12 बजे तक वो काम करके देना है एंड अचानक 5 मिनट के बाद कहता है कि नहीं इसको आधे घंटे में करके दो, राइट, सडनली यू विल फील स्ट्रेस कि जो काम के लिए पहले मेरे पास 2 घंटा था अभी अचानक टाइम कम कर दिया, आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड अप, राइट. So stress has got two dimension. One is the time dimension. आपसे अगर टाइम ले लिया जाता है तो अचानक आपको स्ट्रेसफुल लगता है. एग्री? टाइम की कमी की वजह से स्ट्रेस थोड़ा सा फील होता है. एग्री? वन मोर डायमेंशन इज आपकी अपने से एक्सपेक्टेशन बहुत है लेकिन आप उस एक्सपेक्टेशन तक पहुंच नहीं पा रहे हो. राइट? स्पेशली इट हैपेंस विद किड्स. पेरेंट्स जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जस्ट उस एक्सपेक्टेशन को लिव अप करने के लिए बच्चों को स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाता है. आप अगर एक बच्चे को कहते हो कि देखो ना फर्स्ट आना है क्लास में, इंस्टेड इफ यू से दैट कि डजंट मैटर तो लास्ट ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डू यू थिंक देयर विल बी अ चेंज इन हिज बिहेवियर और चेंज इन हिज स्ट्रेस लेवल? राइट. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड, आपके शरीर में we will have a separate discussion on a medical level altogether, but कुछ ऐसे हॉर्मोन्स या कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं जो आपके शरीर के अलग अलग पोर्शंस में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, राइट. एंड देन it starts to have an impact on our mind. Gradually it starts to have an impact on our mind. आपको एक दिन कोई कहता है कि सुबह 4 बजे उठो तो आपको उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन कंटिन्यूअस जब होना शुरू हो जाता है यू स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड एंड वन फाइन डे आपको ऐसा लगता है कि नहीं बस बहुत हो गया. कितना दिनों में ऐसा लगेगा? राइट. सो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस. ठीक है ना. तो आज हम लोग क्या करेंगे, दिस होल सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 parts. We'll have 15 minutes of some knowledge, then we will have a process of 15 to 20 minutes, and in the end we will take up some questions. What do you say? 15 मिनट का थोड़ा सा नॉलेज, फिर 15 से 20 मिनट का एक प्रोसेस होगा, so that you all can experience how to handle stress, and last will be some question answer sessions. ठीक है? यस सर. फाइन Good सर. to go? यस सर. ठीक है ना. So स्ट्रेस को ब्रेकअप करते हैं. ठीक है ना. सो स्ट्रेस अगर देखा जाए, सो वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. एक होता है आपका पर्सनल लेवल पे जो होता है इंटर रिलेशनशिप्स, राइट. एक होता है प्रोफेशनल लेवल पे, एक होता है एनवायरमेंटल लेवल पे. आज के डेट में अगर एनवायरमेंटल की बात किया जाए, कोरोना वायरस इज वन बिग थिंग व्हिच इज एन एनवायरमेंटल थिंग. प्रोफेशनल लेवल पे आप इस टाइप से जॉब कर रहे हो, एंड इन all types of work there will be different types of stress. Those people who are on the ground, जो लोग ग्राउंड में काम करते हैं, they will have a physical level of stress. जो लोग जैसे कॉल सेंटर में काम करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होगा, सीट है सब कुछ है, बट कंटिन्यूअसली they will have a physical level of stress on their ears, on their eyes, on their vocal cords, right. उसी तरीके से जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, they will have a different kind of stress. So for all types of work, you will have one physical stress and one mental stress.
डिपेंड्स अपॉन कि आप काम कौन सा करते हो, राइट? इफ यू कम टुवर्ड्स द पर्सनल थिंग, तो पर्सनल आपका फैमिली रिलेशनशिप्स हो या आपके वाइफ के साथ जिस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हो, आप अपने किड्स के साथ जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हो, उधर भी एक लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है. Many a times it comes just to maintain the relationship, right? दूसरा कि आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहे या आप उनको समझा नहीं पा रहे हो. एग्री? ठीक है ना? सो वन लेवल ऑफ स्ट्रेस कम्स फ्रॉम बैलेंसिंग ए रिलेशनशिप. एक रिलेशनशिप को किस तरीके से बैलेंस करके रख सकते हो so that there is harmony over there, right? Third level of stress that comes is on the way we have disciplined our life. If there is discipline in our lives, then there is आपका ना एक लेवल ऑफ स्ट्रेस से आप बच जाते हो. दैट इज द बॉडी के ऊपर उतना स्ट्रेस आता नहीं है. इसका मतलब है कि आप सही टाइम से सो रहे हो, सही टाइम से आप उठ रहे हो, सही खाना खा रहे हो, एंड यू हैव ए डिसिप्लिन्ड बॉडी. अगर डिसिप्लिन्ड बॉडी नहीं है, then again there will be a different kind of stress that you will go through. That will be on your health. ठीक है ना? So one is on the professional front, one is at the relationship front, and one is on your discipline part, right? Any questions specifically to all these three? कोई अभी कुछ पूछना चाहता है? You can type it if you want. I will just reply to it. No questions? We can go to the next thing. Wonderful. So, okay. So stress को सबसे पहले समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस कहाँ पे आ रही है. एंड दिस होल टॉपिक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट डजंट वर्क एक्चुअली. स्ट्रेस को ना कभी मैनेज आप मत करना कभी भी. टाइम मैनेजमेंट होता है, दैट इज वन थिंग, ठीक है ना? बट स्ट्रेस मैनेजमेंट के जगह द टर्म दैट आई प्रेफर टू यूज इज स्ट्रेस एलिमिनेशन. So stress is something that nobody wants. It's like a garbage in our system. ठीक है ना? तो गार्बेज को आप घर के कोने में रखते हो, ठीक है, लेकिन हर दिन उसको सुबह फेंकना होता है. उस गार्बेज को मैं ड्राइंग रूम में रखूं या उस गार्बेज को मैं बाथरूम में रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस गार्बेज को मैं कहाँ रखूं. उसको कहीं ना कहीं एक दिन अगले दिन तो सुबह फेंकना ही होता है, नहीं तो वो स्मेल क्रिएट करना शुरू कर देता है. एग्री? So the word that I prefer is not stress management, but stress elimination. स्ट्रेस को एलिमिनेट करना है, शरीर से बाहर निकाल के फेंकना है उसको. नहीं तो जितना स्ट्रेस शरीर के अंदर रहेगा, धीरे धीरे इट विल टेक द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ ए डिजीज इन द लॉन्ग रन. हाउ मेनी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना है, स्ट्रेस को ग्रेजुअली हमें उसको एलिमिनेट करना है अपने सिस्टम से, राइट? Okay. Second thing that I want to talk about stress management is कि कितने जनों को ऐसा लगता है कि नहीं सर, हम लोग लाइफ में काम करेंगे तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस तो आएगा, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस की जरूरत है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर एट ए मैनेजरियल लेवल, जिनके अंदर जिनके साथ उनके टीम मेंबर्स है, कि थोड़ा तो उनको स्ट्रेस देना चाहिए. कि बिना स्ट्रेस दिए कभी कभी काम होता नहीं है. Yes, sir. Right? Now, how many of you can differentiate these two terms that I'm going to say right now? Stress and pressure.
कि स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर देना इंपॉर्टेंट है? प्रेशर कि स्ट्रेस? Which word would you like to choose? Right? So pressure is used at a managerial level. आप किसी को स्ट्रेस देना चाहोगे कि आप किसी को बैलेंस्ड प्रेशर देना चाहोगे? Right? So most of you are using a word called balanced pressure. So what exactly is a balanced pressure? और ये balanced pressure कब stress बन जाता है? How many of you have ever been able to understand this thing? Right? प्रेशर देना इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिना प्रेशर के काम नहीं निकलता है. इन साइकोलॉजी दे से दैट प्रेशर इज व्हेन, जैसे टूथपेस्ट से आपको पेस्ट निकालना है तो थोड़ा सा प्रेशर अगर आप नहीं दोगे तो वो पेस्ट बाहर नहीं आएगा. सो प्रेशर देना एट टाइम्स इंपॉर्टेंट है टू गेट सम वर्क डन. देयर हैज टू बी सम प्रेशर, नहीं तो काम कभी कभी नहीं निकलता है. ये प्रेशर कब स्ट्रेस में बदल जाता है? व्हाट इज दैट thing that happens when pressure suddenly becomes stress? Okay, somebody has written without pressure, anyone cannot do that work on time. Correct? Anybody else who wants to share something कि pressure से stress कब बन जाता है? ये कब होता है? कि pressure is important, but pressure से stress कब हो जाता है? When you are not able to handle it properly. Okay, when pressure is beyond the human control. Okay. Anybody else wants to share something? Okay, so now when more and more pressure we give, deadline, when we do not plan our work, correct? When our mind feels burdened with pressure, okay, wonderful. So think of a situation. I'm giving you a situation right now. I tell you कि कल सुबह 4 बजे उठना है और ये एक्टिविटी हम लोग बस हफ्ते में एक दिन करेंगे. Only once a week will do this activity. कि सुबह 4 बजे उठ के हमें अपनी घर की सफाई करनी है. Only once a week. The other situation is, I tell you कि अब नेक्स्ट 1 मंथ हम लोग इस एक्टिविटी को करेंगे और कभी कभी हो सकता है कि हमें सुबह 3 बजे भी उठना पड़ सकता है, कभी कभी 2 बजे भी उठना पड़ सकता है, बट ये कंटिन्यूअस अब रहने वाला है. सो विच वन साउंड्स गुड? सेकंड was first one is dangerous or the second one is dangerous? Once a week getting up at 4 o'clock और डेली गेटिंग अप एट 4 o'clock क्लॉक कभी कभी हो सकता है कि 3 बजे भी हो सकता है कि 2 बजे भी हो सकता है. So the difference between pressure and stress is, pressure आप कभी कभी दो, it's okay, people can handle it, but if you continuously give pressure, then it takes a very dangerous form. Same thing, it happens with our body. कि once in a while आप अपने सिस्टम को बिगाड़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअसली बिगाड़ोगे तो सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है. सेम थिंग विद ह्यूमन माइंड. once in a while it's okay, else we start feeling stressful and then gradually system टूटना शुरू कर देता है. Now think of the time when people go to, let's say they join the army. Now army is a very stressful situation. Most of us can't even think of getting into that disciplined life of army. बट उधर वो लोग इस चीज को किस तरीके से हैंडल कर लेते हैं?
time management and peace of mind, exactly as an army. They are trained to handle such situation of stress, right? So one thing is, people who join army, even before they join army, they know what they are entering into. Correct? ज्वाइन करने से पहले ही उनको पता होता है कि कहाँ पे वो एंटर करने वाले हैं. So the mind actually starts preparing them for that. It doesn't come as a shock to many of them कि हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, because they have already made a choice. So the word choice is very important. So if somebody comes with a choice, then if you put extra pressure also, he or she may be able to handle it. But if somebody is not aware about those choices, तो फिर उधर गेम खराब होना शुरू हो जाता है and we end up having stress, right? Okay. So जब स्ट्रेस होता है, फर्स्ट इज कि जनरली ह्यूमन बींग्स के साथ क्या होता है कि वी स्टार्ट इग्नोरिंग इट इनिशियली. ऐसा लगता है कि चल यार इसको हम मैनेज कर ही लेंगे. एंड द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट वी डू इज आइदर वी स्टार्ट इनिशियली, जैसे कुछ लोगों ने लिखा था कि हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो सो जाते हैं या किसी से बातचीत करना शुरू कर देते हैं. Now you start finding ways to come out of that zone of stress. कंटिन्यूअसली काम किया, आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, 8 घंटे से लैपटॉप के सामने बैठे हैं, तो चलो कुछ देर आंख बंद करके रख देते हैं, राइट? ऑफिस में बहुत स्ट्रेसफुल हुआ तो घर आके थोड़ा सा दारू पी लिया या सिगरेट पी लिया, राइट? सिगरेट पी लिया, and suddenly like the stress doesn't feel that stressful anymore, right? And hota kya hai ki many a times just to eliminate stress you end up developing some negative habits. How many of you agree with that? You can message me privately also. कि स्ट्रेस को हैंडल ना, मतलब लग रहा है कि स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में एक नेगेटिव हैबिट डेवलप हो गया जो एक्चुअली शरीर के लिए और डेंजरस है. तो एक तरफ से तो स्ट्रेस शरीर को तोड़ रहा है, उसके ऊपर से एक हैबिट भी डेवलप हो गया है जिससे शरीर और टूट रहा है. now you're in double trouble, right? Good. So most of you are agreeing to it, ठीक है ना? Studies have revealed that 80% of people develop bad habits. This habit of smoking, if I just talk about smoking, 80% of people जिन्होंने स्कूल कॉलेज में स्मोकिंग नहीं किया लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में स्मोकिंग करना शुरू किया, it only happened because of stress. Okay, so today we will do a small process of 15 to 20 minutes wherein कहा गया है, बहुत जगहों पे इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, and I personally have seen the results of it, that through breath, जो आपकी सांस है, not your mother-in-law, but through breath you can manage your stress. There are multiple different ways of managing your stress, but one of the best is through your breath. ठीक है ना? तो ये ब्रेथ के थ्रू से हम लोग अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. We'll first do the process and then I will explain to you a bit about how breath plays such an important role in managing stress. So how many of you are ready for it?
10 से 15 मिनट। एक रूल है कि जो मैं इंस्ट्रक्शन बोलूंगा, यस योगा ऑल्सो हेल्प्स, बट जिसको कहते हैं ना वैक्यूम वैक्यूम क्लीनिंग अगर करना है स्ट्रेस का, कि 10 से 15 मिनट के अंदर शरीर से स्ट्रेस को बाहर निकालना है। देयर आर मल्टीपल वेज, बट अगर आप चाहते हो कि 10 से 15 मिनट का कोई एक प्रोसेस करें हम, इससे अभी का अभी आपको थोड़ा सा ना फीलिंग आए कि हाँ लाइक कुछ तो है इसमें, and I am feeling not that stress anymore. Yes, pranayam helps, yoga helps, meditation helps, and at the end of the process, I will tell you 4 5 things which basically helps. ठीक है ना? So, Sakshi, can we start off? Acha, can I get a video of everybody who is right now? Video share हो सकता है क्या? If I can see the video screen. Please share the videos as asked by the sir. ओके, सब अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, म्यूट रखना ऑडियो को, बस आई जस्ट वांट टू सी एवरीबॉडी वंस। वंडरफुल, प्रणाम ऑल ऑफ यू। नमस्ते सर। एवरीबॉडी इज स्माइलिंग। मेरे सेशन का एक रूल है कि भाई क्या कहते हैं, दांत है तो थोड़ा सा दांत दिखाना होता है, दांत अगर नहीं है तो फिर मुंह बंद रख सकते हो ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन में द इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दांत वांत नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुंह बंद रख सकते हो, अगर है तो दिखाने का कंजूसी ना करें। अच्छा, आपको ये पता है कि एक बच्चा जब 2 या 3 साल का होता है तो वो दिन में कितने बार हंसता है? एक बच्चा दिन में कितने बार हंसता है? एनी आइडिया? 2 या 3 साल का बच्चा कहते हैं 300 to 400 टाइम्स इन अ डे। 300 से 400 बार वो हंसता है। जी। ठीक है ना? उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा ग्रो होके जब वो 10-12 साल का हो जाता है तो कितने बार हंसता है? कम होगा। तो 50 से 60 बार दिन में। जी। जब कॉलेज में आ जाता है तो कितने बार हंसता है? और भी कम होगा। तो कहते हैं 10 से 12 बार। जी। फिर जब ऑफिस में आ जाता है और शादी हो जाती है तो कितने बार हंसता है? और कम हो जाएगा। तब जोक चाहिए होता है हंसने के लिए। शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं। हाँ, शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट है, करेक्ट है। जी जी। ऐसे करते करते जब Correct. 50-60 साल के हो जाते तब कितने बार हंसते दिन में? तब दिन में नहीं हंसते, जब वो चांद फुल निकलता है ना, फुल मून, तो तब तो हंसते पार्क हैं। में जाके हंसना पड़ता है। हाँ, तब आर्टिफिशियल वो ना लाफ्टर क्लब ज्वाइन करना पड़ता है हंसने के लिए। हाँ। ठीक है ना? और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जब हंसी खत्म ही हो जाती है, उसके बाद ना लाफ्टर क्लब चलता है ना कुछ चलता है। कितनी भी आप क्या कहते हैं मजाक उड़ा लो, लेकिन वो हंसी बाहर नहीं निकलती है। इवन बर्थडे में भी नहीं निकलती है हंसी बाहर, राइट? सो अगर हंसना भूल गए तो मतलब मान के चलो कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस है ना? कभी कभी ऐसा लगता है कि बाप रे हंसी। तो वंस एक बार ना मैं जापानीज लोगों का सेशन ले रहा था, तो जापानीज लोग हंसते बहुत कम है। तो जैसे ही मैंने इनको बोला कि भाई ऐसे हंसना है, तो सारे कहते हैं भाई दिस इज नॉट इन आवर कल्चर एनीमोर। अगर आप देखोगे जापानीज लोग हंसते नहीं है। ऐसे किसी आप में से किसी ने किसी जापानीज के साथ इंटरेक्शन हुआ है? एनीवन हु हैज इंटरेक्टेड विद द जापानीज?
somebody has written agree, you will never see them smiling. है ना? So Yes, smile, ठीक है ना? It is very important. And when you smile, that is one exercise जिससे 46 muscles एक साथ relax होते हैं, जी जी. ठीक है ना? Thank And you, at the sir. end, I will tell you the importance of smile. जब ये session खत्म होगा, I'll tell you the importance of smile. ठीक है ना? Okay, Yes. so smile is not supposed to be taken while taking a selfie only. ठीक है ना? Smile का एक different dimension है अपने life में. ठीक है? जी So क्या जी. करना है कि सबको जी. सीधा बैठना है या ऐसे पोजीशन में बैठ जाओ so that you are feeling relaxed. ठीक है ना? बस Yeah. लेटना मत प्लीज. बहुत लोगों ने अपने वीडियो म्यूट किया हुआ है ना. I hope nobody is lying down. ठीक है ना? So you sit straight. ठीक है? And you have to close your eyes for the next 10-15 minutes. Okay, you have to close your eyes and just follow my instructions. इसका इफेक्ट तभी पता चलेगा जब आप मेरे पूरे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करोगे. It will be very simple instructions. ठीक है ना? And then when I say to you कि open your eyes, then you can open your eyes. Okay? So let's start. आंखें बंद. और एक लंबी गहरी सांस लीजिए. टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन. अपने लंग्स को सांस से फिल कर दीजिए. एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल्स. आराम से. टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन. फिर से. एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज. Take another deep breath in. This time, when you are breathing, have a big smile in your face. Only I can see, nobody else can see you. Have a big smile in your face and breathe out. सांस छोड़ना मत भूलना. और जब मैं सांस की बात कर रही हूँ तो मदर इन लॉ को तो गलती से भी मत याद के रखना. I'm talking about your breath. Now take a deep breath in. एक और लंबी गहरी सांस अंदर. Now as you breathe out from your mouth. मुंह से हवा को छोड़िए. Take another deep breath in. And मुंह से छोड़िए. Now try to relax your shoulders. Try to relax your shoulders. Keep breathing normal breaths and try to relax your shoulders. गर्दन को ढीला छोड़िए. Try to relax your right arm, left arm. Try to relax your eyes. And whatever thoughts are coming, let it come. Now take another deep breath in. And breathe out. Now try to relax your legs, your right leg, left leg, the whole body. आंखें बंद ही रखिए. Have a gentle smile in your face. Keep breathing.
attention to your flow of breath. जो नॉर्मल सांस लेते हैं बस सांस के प्रति ध्यान ले जाइए. Without smile, don't forget your smile. Now become aware of earth. मिट्टी के प्रति ध्यान ले जाए. And just think, all your thoughts are getting buried. मिट्टी के अंदर, जमीन के नीचे सारे आपके थॉट्स दब गए हो. जैसे मिट्टी ने आपके सारे थॉट्स को अपने साथ ले लिया हो. All your thoughts are getting buried inside the earth. And you feel empty from inside. Just have this small feeling कि आपके जितने भी थॉट्स है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, वो मिट्टी के अंदर जा चुका है. The earth is taking care of it. Now become aware of water. पानी के प्रति ध्यान दीजिए. एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर. एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर. थिंक ऑफ वाटर. पानी के प्रति ध्यान दीजिए और ऐसे सोचिए कि जैसे बारिश हो रही है, वैसे पानी के स्रोत में, जैसे नदी है या बारिश हो रही है, सारे आपके थॉट्स उसमें पानी आके लेके चला जा रहा है. And it is cleansing you from inside. A gush of water has come and it has taken away all your thoughts. And you feel empty from inside. Just think of the element water. The water is cleansing you from inside. Now think of the element fire. अग्नि के प्रति ध्यान दीजिए. And just feel as if all your thoughts, problems are getting burned in the fire element. अग्नि के प्रति ध्यान दीजिए. Just think of the element fire. Now that everything is burned, you are empty from inside. Feel that emptiness. Take a deep breath in and breathe out. Take another deep breath in, and as you breathe out, relax your body. शरीर को ढीला छोड़ें. Now think of air element. हवा के प्रति ध्यान दीजिए. And just think that a gush of air has come and it has taken away all your pain, sorrows, stress, and you're feeling empty from inside. जैसे हवा का एक झोंका या तूफान आया
Just think of the air element. आंखें बंद ही रखिए. Take a deep breath in and breathe out. And now think of the sky element, आकाश. के प्रति ध्यान दें. This is the emptiness. And just think all your thoughts, problems are getting dissolved in the space element. And you feel empty from inside. Take a deep breath in and breathe out. Take another deep breath in and breathe out. Now become aware of the seat on which you are sitting right now. Become aware of your legs, hand, the whole body. Just become aware of the whole body. Take another deep breath in and breathe out. And whenever you feel comfortable, जब भी आपको मन करता है, धीरे से अपने आंखें खोल सकते हैं. धीरे से अपने आंखें बहुत अच्छा लगा सर. खोल सकते हैं. Right? So how many of you are feeling good? You can raise your hand. I can see. You can raise your hand. You can do a Tata type of thing. आप लोगों को अच्छा लगा? जी. अच्छा, कितना देर किया हमने ये? 15 minutes. 15-20 minutes, right? ठीक है ना? So this is called stress elimination. ऐसे बहुत सारे अलग-अलग processes हैं. जी. You can call it meditation. You can call it deep breathing exercises. ना? So there are multiple techniques through which आप अपने शरीर के अंदर जो स्ट्रेस होता है, किसी ने लिखा फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट फ्लोटिंग इन द एयर. यस, शरीर हल्का फील होना शुरू हो जाता है, मन हल्का हो जाता है. कभी कभी होता है ना, बोझ को इतना देर तक पकड़ के रखा है, तो फिर जब वो फाइनली निकलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, खाली हो गया, है ना? सो इन टुडेस वर्ल्ड, आज के टाइम पे स्पेशली जब इतना सारा जो हम लोग एक पैंडेमिक से जो गुजर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर और मन का ध्यान रखें. राइट? और स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम इसको एलिमिनेट ना कर पाए तो फिर अगर हमारे अंदर स्ट्रेस हो जाता है तो सबसे पहले शरीर थोड़ा सा डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है, और फिर हमारे आसपास के जो लोग हैं उन पे ये इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है. तो आपके घर में आप सोचिए कि कोई है जो हर समय स्ट्रेस में रहता है, तो आपको कैसा फील होता है? बुरा लगता है ना? और कभी-कभी तो क्या, मैं तो हर समय कहता हूँ कि जो होता है ना एंगर, एंगर के पीछे 90% टाइम स्ट्रेस ही होता है. वो स्ट्रेस एज एन एंगर ही निकलता है. एंगर के अलग-अलग रीजंस है, बट वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर एंगर इज स्ट्रेस, है ना? तो स्ट्रेस कंट्रोल में अगर रहता है, या स्ट्रेस को अगर आप समझ सकते हो, स्ट्रेस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. वन ऑफ द बेनिफिट्स इज यू
हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपका वर्क के प्रति जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज होती है, आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा स्किलफुल हो जाते हो. सो स्ट्रेस इज लाइक एन एडेड प्रेशर ऑन आवर सिस्टम. सो इट इज लाइक आप काम कर रहे हो लेकिन ना 10 किलो का एक सामान उठा के बैठे हुए हो अपने साथ. तो आपकी जो परफॉर्मेंस की जो एबिलिटीज होती है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है. स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है तो आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज में भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है. आप किस टाइप का डिसीजंस लेते हो या आप क्या चॉइसेस लेते हो उसमें एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है. स्ट्रेस में अगर आप बहुत टाइम रहते हो, स्ट्रेस में अगर आप बहुत टाइम रहते हो तो एज ऑफ टुडे देयर आर थिंग्स कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस जो आ चुकी है. You will suddenly see people are having at a very young age blood pressure, cholesterol, BP, and doctors have said that कि बहुत कुछ तो अपने खान पान से रिलेटेड है लेकिन बहुत सारा चीजें स्ट्रेस से भी रिलेटेड है ना. जी. सो द होल आइडिया ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टू नहीं एलिमिनेशन जिसको मैं कहता हूँ, इट इज टू हैव ए हेल्दी बॉडी एंड ए हेल्दी माइंड. एंड स्ट्रेस में जो लोग बहुत टाइम रहते हैं तो धीरे धीरे ना वो उनके माइंड पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, आपके बातचीत करने के ढंग में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, हंसना भूल जाते हैं. जो लोग हंसना भूल चुके हैं कहीं ना कहीं मान के चलो कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ आप जी रहे हो, है ना. अच्छा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाएगा, उस फीडबैक फॉर्म को आप फिल कीजिए और जितना आप उसमें अच्छे से वो सारे फीडबैक्स हम लोगों के पास आएगा. एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर ओवर देयर जो आप इधर शेयर नहीं करना चाह रहे तो उधर प्लीज कीजिए, ठीक है ना. जी. ओके, सो लास्ट के जो 15 मिनट्स है आई वांट यू गाइस टू आस्क सम क्वेश्चंस टू मी जिसका मैं आपको आंसर दे सकूं, राइट. कुछ कुछ तो चीजें मैंने बताया, एक प्रोसेस आपने एक्सपीरियंस किया, but the last part of this session I want you guys to ask some questions to me. So you can ask any question related to this subject to me right now and I will be more than happy to answer. Anybody who wants to ask any question? No, sir. Thank you. Are tension and stress alike? Yes. Synonyms है. अब देखो ना टेंशन किस बात पे होती है. टेंशन भी एक टाइप का स्ट्रेस ही है. तो आपका टेंशन किन चीजों पे होता है. लेट्स से क्लासिकल एग्जांपल है कि मेरे बेटी की शादी कब होगा, राइट. सो when does thought become tension? It is like कि when you continuously think about a single thought जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है. आपने सोचा था कि 25 साल के उम्र में बेटी की शादी हो जाएगी, अब नहीं हो रही है. फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी. जैसे ये रिपीटेड फॉर्म हो जाता है तो ये टेंशन बन जाता है और फिर फाइनली वो स्ट्रेस बन जाता है. एग्री. तो क्या होता है कि टेंशन इज लाइक कि तो इस तरीके से मैं बताता हूँ कि स्ट्रेस होता है कि जो आपको बाहर से मिलता होता है, टेंशन होता है कि जो आप अपने ऊपर ले लेते हो. कुछ लोगों को हर चीज के ऊपर टेंशन हो जाता है. अभी जैसे लॉकडाउन के समय आपने देखा होगा लोग किस तरीके से दुकान की तरफ जब भी कोई एक अनाउंसमेंट होता है आउट ऑफ द वे, क्यों इमीडिएटली टेंशन हो गया. सेकेंड थिंग इज यू फील टेंशन व्हेन यू थिंक यू डोंट हैव ए सोल्यूशन टू इट. सो टेंशन और प्रॉब्लम काइंड ऑफ सेम ही है. आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो आपको वो टेंशन फील हो रहा है, आपके पास सोल्यूशन होता तो आपको वो टेंशन नहीं फील होता. तो हर समय याद रखना कि एवरीबॉडीज लाइफ इज डिफरेंट, एवरीबॉडीज लाइफ इज डिफरेंट ना. जनरलाइज मत कीजिए कभी.
एक जने का क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन, डोंट द स्ट्रेस फ्री सिचुएशन लीड्स टू carefree nature of human beings? So in a way, stress is good to push person beyond his limit. Yes. So it is like stress free pressure. अब pressure दीजिए, pressure is important, but stress is like the negative form of what you want to express. Pressure is the correct form, stress is the negative form. आप खुद ही मन से पूछिए, मैं किसी को प्रेशर दूं या मैं स्ट्रेस दूं? प्रेशर भी, इट इज लाइक नॉट कंटिन्यूअस बट वंस इन अ व्हाइल यू कैन गिव प्रेशर. कंटिन्यूअसली प्रेशर दोगे तो वो फिर स्ट्रेस में हो जाता है. एंड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट. किसी को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है तो उसको प्रेशर देना होगा, उसके लेवल को इंक्रीज करना होगा. तो जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो जो कोच होता है वो कहते हैं कि आज अगर तुमने 20 पुशअप्स किए तो कल तुम्हें 25 करना होगा, उसके अगले दिन तुम्हें 30 करना होगा. तो डेली वो ग्रेजुअली उस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? So pressure is important to enhance your abilities. Stress is something that decreases your ability at the end. How to handle frustrations? It is just like the stress or because of stress. Frustration is very simple thing. When somebody is not able to understand you or you are not able to make somebody understand, then you feel frustrated. So frustration आपको कब होता है? If the person in front is not been able to understand you or you are not able to make that person understand. इसमें थर्ड आता है when you feel that some work needs to be done लेकिन वो हुआ नहीं या आपके हिसाब से वो नहीं हुआ. So frustration is, इसको आप एक बार समझना, frustration is when you think you are not in control over the situation, right? And also know that not everything will be in your control. क्या आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो? We don't even have the control over our own body. It is aging. क्या आप उस चीज को रोक सकते हो? Ultimate truth है. So certain things you can control, certain things you simply have to let go. And there is a beautiful thing that I have read somewhere. He gives space for imperfections in your life. आप अपने जिंदगी में imperfections का भी space रखना, mistakes का भी space रखना, and then you will see that in that particular space people are evolving or you are also evolving. 10% ka mistakes. So let's say if I give my team members some task, natural hota hai expect everybody to do it in the correct way. मैं चाहता हूँ कि सब लोग एकदम सही करके दें. Does stress is different from disagreement, reactions or negative thoughts? See, does stress is different from disagreement? Okay. So agreement or disagreement is based on two things. First is perception and second is knowledge. Disagreement दो चीजें से होती है, एक होती है perception और एक होती है knowledge. So I have knowledge on certain things, the other person doesn't have, there can be disagreement, right? Reaction or negative thoughts are two different things. Stress and negative thoughts बहुत आ सकते हैं. अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो तो पॉजिटिव थॉट आने के चांसेस बहुत कम ही है. चांसेस है कि नेगेटिव थॉट्स ही आए. Sir, can we avoid to make our friends not to feel frustrated just because I am not able to make him understand? See, somebody else feeling frustrated, you may not have control over that. You can have control over your frustrations. Somebody else getting frustrated is उसका problem है वो, अपना नहीं है. But if you can understand that person's behavior, कि किस वजह से उसको frustration आता है, and then you modify your behavior to that, then it can be a solution.
but not recommended. Right? किसी को Yes, फ्रस्ट्रेशन sir. आता है ना, कब तक कंट्रोल करोगे? लेकिन हाँ, ये अगर समझ में आ जाए कि क्यों उसको फ्रस्ट्रेशन आता है और अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया ना, ताकि दैट पर्सन इज इन पीस. फ्रस्ट्रेशन मीन्स द अदर पर्सन इज नॉट फीलिंग पीसफुल. तो मन से अगर थोड़ा सा ना कंपैशन आ रहा है कि यार ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, तो चलो मैं अपने बिहेवियर को बस इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ सो दैट ही कैन बी पीसफुल. तो वो चल सकता है, बट डोंट ट्राई टू डू इट फॉर एवरीबडी. तो फिर अपना बिहेवियर चेंज हो जाता है पूरा. यू बी व्हाट यू आर. राइट? Yes, sir. So let us do one final process. ठीक है ना? And then you can share your questions. ना? You can have a different session altogether. ठीक है? So final process करें. सब अपने videos को एक बार on कर सकते हैं. Okay, sir. If you can turn on your videos. Okay, sir. Okay. Right? So I was telling about the last process of the day. ठीक है ना? तो इसको ऑनेस्टली करना. ठीक है ना? जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको आप एकदम ऑनेस्टली करना. सबको आ रही है? वॉइस क्लियर है सबके लिए? राइट? जी. ओके. सो व्हाट यू नीड टू डू, रेडी? बस 2 मिनट का प्रोसेस है, नॉट इवन 2 मिनट्स, 1.5 मिनट्स में हो जाएगा. सो व्हाट यू नीड टू डू कि आपको ना मुंह लटकाना है. जैसे स्माइल करने को बोलते हो तो स्माइल करने के एकदम ऑपोजिट करना है. मुंह एकदम लटका दो, एकदम गुस्से वाला शक्ल बना दो, एकदम मुंह लटका दो. लटका दिया मुंह? एकदम मुंह लटका दो. हंसना तो है ही नहीं, एकदम मुंह लटका दो. ग्रम्पी इसको कहते हैं. और सोचो कि आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं. हंसना नहीं है गलती से भी. मुंह लटकाओ, अच्छे से मुंह लटकाओ और सोचो कि तुमने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं. सोचना है बस. और जो तुम्हारा बॉस है उसने एक BMW का कार भी गिफ्ट कर दी है. मुंह लटका लो, मुंह लटका लो, सोचना नहीं है. ठीक है ना? अच्छा, अब कितने जनों को मतलब एक अंदर से स्माइल आ रही है कि काश ये सच हो जाए? जी. एक बार हाथ ऐसे हिला के बताना कितने जनों को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार बड़ा डिफिकल्ट काम है, ऐसा स्माइल करने दो ना. ठीक है ना? अब जरा स्माइल करना सब लोग. अच्छे अच्छा वाला स्माइल देना. और ये सोचो, बस सोचना है. ठीक है ना? बस सोचना है. ठीक है ना? स्माइल करो अच्छे से, स्माइल करो अच्छे से. बस ये सोचना है कि कल मोदी जी बोलेंगे कि मैं तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे निकाल रहा हूँ. किसी के पास कोई चॉइस नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं. हम्म? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट? नहीं आ रहा है ना? तो कोई तो कह रहे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता है कि नहीं होने वाला है. लेकिन सर बाई मेरा चांस तो हो गया तो रुपए ही फिर तो नहीं है. गया स्माइल. राइट? सो द सीक्रेट इज, मतलब इस प्रोसेस का सीक्रेट ये है कि व्हेन यू स्माइल उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा. अच्छा, आप में से Yes. कोई ये मत करना कि अभी ना वो 3 बजे से सीएम्स के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, तो पता चला कि सर कहीं आपको सूत्रों से तो खबर नहीं मिल गई, तो अभी जाके एटीएम से मैं पैसे निकाल देता हूँ. सो द सीक्रेट इज कि व्हेन यू स्माइल, जब आप स्माइल करते हो तो आपके मन में कभी कोई नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता. इम्पॉसिबल है, वो दरवाजा बंद है. और जब आप मुंह लटका के रहते हो, हर समय ग्रम्पी रहते हो, तो कभी पॉजिटिव थॉट आ ही नहीं सकता. उसका भी दरवाजा बंद है. तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा दरवाजा खोल के रखना चाहते हो. सो इफ यू आर स्माइलिंग,
you will always have positive thoughts. And if you are grumpy, you will always have negative thoughts. ये ऑब्जर्व करना. अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ना कितने जने हंसते हैं, हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं, एंड व्हाई स्माइलिंग इज इम्पोर्टेंट. कभी कभी ना नकली वाली स्माइल लेके बैठे रहना इंस्टेड ऑफ हैविंग ए ग्रम्पी. कभी कभी शक्ल इतना हो गया है कि ऐसा लगता है ये स्माइल क्या चीज होती है ना, ये स्माइल क्या चीज होती है. और कभी कभी मैंने लोगों को देखा है कि 50 बार सेल्फी लेंगे और फिर जो सबसे अच्छा वाला सेल्फी है उसी को पोस्ट करेंगे. उससे पहले 50 सेल्फी ले चुके होंगे, क्योंकि ये अपने शक्ल को ही पसंद नहीं आते. तेरे मेरे इनके टिंकरे ना, हर एंगल से सेल्फी लिया जा रहा है जस्ट टू फाइंड दैट परफेक्ट स्माइल. क्यों स्माइल करना भूल चुके हैं, राइट? सो स्माइल, नो दिस टेक्निक. एंड कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, वन थिंग दैट इमीडिएटली हेल्प इज 10 डीप ब्रेथ. 10 लंबी सांसें आंख बंद करके अगर आप लेते हो तो उस क्षण के लिए आप, इट इज लाइक दैट कैप्सूल. तो हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन में, कहते हैं कि यार ना, स्पेशली विद पीपल हु स्मोक्स, तो हम लोग कहते हैं कि हम भी सिगरेट पीते, तुम भी सिगरेट पीते, हम भी सिगरेट पीते हैं. तो हम लोग ऐसे ही सिगरेट पीते हैं, सिगरेट है नहीं, लेकिन ऐसे ही 10 लंबी सांसें लेते हैं. नहीं सर, हम नहीं पीते. मेरे को पता है सब नहीं पीते हैं, लेकिन कभी इसको ना एक्सपीरियंस करना. सिगरेट को छोड़ के 10 बार सांसें लो सिगरेट के तरीके से, एकदम लंबी सांसें. जैसे जो लोग सिगरेट पीते ना लंबी सांस नहीं लेते और फिर धुआं छोड़ते. तो डू दैट विदाउट सिगरेट. उसका इम्पैक्ट उतना ही है. शरीर बच जाता है, पैसा बच जाता है, और इम्पैक्ट डबल होता है. So anybody who is smoking can share it the separate feedback to me कि एक्चुअली में होता है कि नहीं होता. There are lot of ना कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिन्होंने तो मेरे को बोला है कि सर होता है, सिगरेट पीना बंद कर दिया हमने. ये इम्पैक्ट तो लिटरली सर डबल होता है. और एकदम उसी स्टाइल से करना होगा, एकदम ना जैसे सिगरेट पीते ना ऐसे ही. तो सांस को रोको, 10 बार करो, एंड सडनली यू विल फील कि ना स्ट्रेस शायद कहीं गायब हो गया कुछ देर के लिए. पावर कैप्सूल. So thank you so much to all of you. Na, it was wonderful interacting with all of you, the way you have participated. Na, thanks to Digi Saksham and its team for giving me this opportunity to take this session. Na, and you all stay safe, well. Na, I personally do a lot of prayers, so love, blessings to all of you.